Okay, beta. Let's discuss percentages, right? So, beta, first let's understand what the word percentage means, right? So, beta, per means out of, right? Out of, or you can say divide, right? Per means divide. And cent means, right, beta? Cent means 100. Clarity? ठीक हो गया? Per cent यानी out of 100, right? Out of 100. Clarity? So what is the symbol for percentages? Beta, this is the normal symbol for the percentage. Remember that. ठीक? Let's say, I'll give you an example. Let's say you have 20%, right? 20%. So how would you convert this into a fraction, or what is the meaning of this in simplest form? So beta 20, right? As we've already discussed, percent, right? So per means out of and cent means 100. So it simply means 20 out of 100, right beta? And if you just simplify, so you just simply divide by 10 and then it's 2 over 10. So 1. So in simplest fraction, this becomes 1 over 5, right? So anyway, the meaning of 20% should be absolutely clear. So whenever beta you see this sign, ठीक है, ये जो percentage का sign है, तो बेटा इसका simple मतलब आपने कर देना है out of 100. You simply divide whatever the number is before the symbol, you simply divide it by 100. Clarity? I'll give you another example. Let's say beta you have 50%, right? Now you saw this symbol, ठीक है? तो बेटा इसका मतलब है out of 100. We have already discussed that. What is the meaning of the symbol, right? So beta 50 out of 100. ये बेटा percentage का मतलब है. That is how you convert any percentage into a fraction. Clarity? और बेटा जब आप इसको simplify करोगे तो again 0 0 से cancel, you divide by 100. ठीक है? You divide by 10 first of all. Then you've left with 5 over 10. So simply divide by 5. 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. So we know 50% is half. Right? 50% is half. So beta, I hope the meaning of percent is absolutely clear. The symbol should be absolutely clear. Right? ठीक हो गया? So whenever this symbol comes, beta, it simply means out of 100. Right? You can convert that number, whatever is before that symbol, into a fraction. ठीक है बेटा? I'll give you another example. Let's say examiner asks you what is 50% of 200, right? ठीक है? 50% of 200. So beta, first of all, what do you mean by 50%? This should be clear. 50 out of 100. Already we have discussed that. ठीक है बेटा? Of means multiply. We have done that in board maths. ठीक है? बोर्ड मैथ्स के अंदर बेटा जब आप बेसिक एल्जेब्रा की जो सिंप्लीफिकेशंस का जो सीक्वेंस है, सो बेटा B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, एंड ऑफ मींस मल्टीप्लाई. बेटा ऑफ मींस मल्टीप्लाई. D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन इन दिस ऑर्डर, राइट? जब आप सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, एंड लेट्स से there is a question in exam जिसमें brackets भी हैं, off भी है, division भी है, and you have multiplication, addition, subtraction. So everything is there. So beta you have to follow this order. In this order you will simplify, right? चलो, coming back to the point. So beta off means multiply. ठीक हो गया? Off 200. So the whole concept is, the whole point is beta 50% को हमने understand करना है, right? So beta we know that we can simplify. ये बेटा 100 से डिवाइड करो, ठीक? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ये जीरोस कैंसिल, सो डिनोमिनेटर में यूर ओनली लेफ्ट विद 1, ठीक है? बिकॉज दिस 100 इज इन द डिनोमिनेटर. क्लैरिटी? ठीक है? 50 और 200 इज इन द न्यूमरेटर. सो इफ यू वांट टू राइट, तो बेटा वी नो 200 का डिनोमिनेटर क्या है? दैट इज 1. ठीक? सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? 50 into 2, that is 100. ठीक है? So 50% of 200 is 100. And we know we have already discussed, beta 50% means half. 50% means if you just convert it into a fraction, so 50% means half. जैसे हम normal everyday life में बोलते हैं कि what is 50% of 1000? So basically we mean कि what is half of 1000, right? That is 500.
So what is 50% of 200? तो बेटा 50% means simply half of 200, which is 100. Anyway, so beta percentages ka concept should be absolutely clear. So beta whenever you see this symbol, percentage का जो symbol है, जो sign है, that simply means out of 100. You convert that into fraction and you can simplify. I hope this is absolutely clear. Now beta, what type of questions they come in exams? जरा हम इसको देखते हैं, right? So beta, first type of question that comes in exams is they simply state change to fractions, right? So let's say they say 60%, right beta? So and let's write another one. Let's say 2%, right beta? So change to fractions. So we've already discussed, beta ये symbol किसका? Percentages का. So 60% means out of 100. Whenever you see this symbol, beta इसका मतलब है simply out of 100, you divide whatever the number is before that by 100, right? So इसको बेटा हम simplify कर लेते हैं. So 0 0 से cancel. You divide the numerator and denominator by 10, right? So what is left बेटा? इसको जरा simplify करो. So 2 पे कर लेते हैं. 2 times 3 6 and 2 times 5 is 10. बड़ी clear बेटा आपने ये जो आप divide कर रहे हैं, you have to write it very clearly, ठीक है, ताकि कोई confusion ना हो. So what is the fraction? इसको simplify करके that is 3/5. ठीक हो गया? चलो 2% को हम क्या लिख सकते हैं? Again 2 out of 100. Whenever you see this symbol, simply put out of 100, divide by 100. Clarity? चलो इसको बेटा simplify करते हैं. So क्या आ गया result? 2 times 1 is 2, ठीक? और 2 times 50 is 100, right? ठीक हो गया ना? 2 पे हम divide कर रहे हैं. And what is the fraction? ये बेटा आ गया 1/50. So 2%, if you want to write it as a fraction, so बेटा आएगा 1/50. और 60% को if you want to write it as a fraction, so this will be 3/4. So this is the first type of questions that comes in exam. You have to change a percentage into a fraction. Clarity? A bit of second type of questions that comes in exams are they say change to percentages, right? So this is exactly the reverse of what we have done. ठीक? Or normally इसमें वो they give you fractions, they can give you decimals, ठीक? So let's say they say 1/4, this is a fraction, and you have to convert that into percentage. हम एक और लिख लेते हैं. Let's say you have 1/10, right? हमने इसको percentage में convert करना है. चलो, so simply better remember that if you have to convert a fraction, if you have to change a fraction into a percentage, you simply multiply that fraction by 100. You just do the reverse, ठीक है? If you want to change any fraction or any decimal number into a percentage, beta you simply multiply by 100, right? So as a result आपके पास क्या आ जाएगा? You just simplify. तो बेटा 4 times 1 is 4, and we know that 4 times 25 is 100. So this is 25%, and this is 25%. And if you want to recheck, ठीक है, इसको जरा हम recheck कर लेते हैं. So if you want to recheck बेटा, मुझे बताओ हम जरा what do you mean by 25%? This means 25 out of 100, ठीक? और अगर आप इसको simplify करें, so 25 times 1 is 25 and 25 times 4 is 100. So again वही fraction आ जाएगी जो हमने initially जिसको बेटा हमने percentage में convert किया था. That means this is absolutely correct, right? So 1/4 को बेटा, because it's a fraction, if you want to write it as a percentage, because I tell my students बेटा, percentages is a very convenient way of writing, fractions and decimals, ठीक है? ठीक है? Percentages is a very convenient way of expressing fractions or decimals. ठीक है? So अब ये देखो, you had a fraction, हमने कितना उसको convenient way में आपने उसको percentage में convert कर दिया, and it's very understandable. 25% means 1/4, ठीक है? 1/4 of the total.
क्लैरिटी? ठीक हो गया? यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जरा देखते हैं. 1/10. सो अगेन इट्स अ फ्रैक्शन और हमें इसके साथ परसेंटेज का सिंबल नजर नहीं आ रहा और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज. सो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है? यू सिंपली मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100. तो बेटा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. चलो, सो व्हाट इज 100 डिवाइड बाय 10? वी नो कि 10 टाइम 1 is 10. हम 10 पर डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट इज 10%. राइट? सो 1/10 is what? 10%. If you want to recheck कि is our answer correct, so बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम 10% को you write it as a percentage, 10 out of 100. जरा simplify करते हैं. 10 टाइम 1 और 10 टाइम 10 is 100. तो yes, it is the same fraction जिसको हमने percentage में convert किया था. I hope the concept is absolutely clear. तो बेटा concept पे आपने focus करना है. If you want to convert any fraction or decimal numbers into a percentage, beta you simply multiply by 100. ठीक हो गया? Okay beta, now C part. Again the question is same beta, change to percentages, right? So जरा हम C part देखते हैं. So beta it says let's say we take a decimal number 0.72. ठीक होगा बेटा? We have to change this to a percentage. तो बेटा again the concept is same कि बेटा any fraction, ठीक हो गया, as we've already discussed, और बेटा कोई भी decimal number आ जाए, if you have to convert that into a percentage, बेटा simply multiply it by 100. ठीक हो गया? So बेटा as a result, अब ये basic simplifications बेटा हमने की हुई हैं कि when you multiply by 100, तो decimal बेटा जितने zeros हैं उतने jumps to the right, उतने places to the right move करता है. So दो zeros हैं, so it will take 2 places on the right. It will move 2 places towards the right. So 1 and 2 decimal इधर आ जाएगा, right? So as a result, this will be 72.0%, which is obviously 72%, right? इसमें कोई doubt बेटा किसी को? Clarity? Let's take another example. बड़ा crucial concept है बेटा. These questions comes in exams. Let's say you have 0.32. Again, the question is same. You have to convert this decimal number into a percentage. ठीक? So बेटा हमने क्या concept discuss किया? Simply multiply it by 100. ठीक हो गया? To convert it into a percentage. चलो, so 2 zeros हैं 100 में बेटा. So decimal 2 zeros 2 places on the right move होगा. ठीक हो गया? So as a result ये decimal move करके कहाँ आ जाएगा? इधर. Right? Clarity? It would move 2 decimals on the right. So बेटा as a result this will be 32.0% and which is obviously 32%. इसमें कोई doubt बेटा? Now बेटा another very interesting question comes in exams and it says change to decimals, right? अच्छा, so बेटा let's say वो आपको कहते हैं कि change 36% to decimals, right? So how do you convert a percentage into a decimal? So again, a very simple concept beta. First, let's convert a percentage into a fraction. So what do you mean by percent? Already we have discussed beta, out of 100. इसमें कोई doubt? ठीक? So beta, in the previous example, beta हमने when we converted a decimal number into 100, so when you multiply by 100, so beta decimal moves 2 places to the right. Right, towards the right. जितने zeros होंगे, it would move, those many places towards the right, right? So when you divide by 100 beta, so the decimal is obviously at the end of the number, right? So this we can write 36.0. Clarity? So decimal would move 2 places towards the left. Remember that when you divide, so decimal moves towards the left. So how many places? 2 places, 1 and 2. Because in 100 you have 2 zeros. So 1 and 2. So decimal would land here beta, right? So as a result, this will be 0.36. Clarity? I hope this is simple. Let's take another example. Let's say beta you convert 28% into a decimal, right? So again the concept is same. First beta you convert it into a fraction, right? Percent means out of 100. Right beta? So now the decimal is obviously at the end of the number 28.0. 28 means 28.0, right?
सो बेटा बिकॉज यू डिवाइडिंग बाय 100, तो डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड्स जाएगा, 1 and 2, सो इट विल लैंड हेयर बेटा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या आंसर आ जाएगा 0.28। क्लैरिटी। सो बेटा ये बड़े कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, लेट्स से 13.4%, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डेसिमल। चलो तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन। तो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, ठीक। सो अब बेटा क्या होगा, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग बाय 100, सो बेटा डेसिमल विल मूव 2 प्लेसेस बैकवर्ड्स, 1 and 2, सो इट विल लैंड हेयर, ठीक है। एज अ रिजल्ट 0.134, ये बेटा आपने इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लैरिटी, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ बेटा देन देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम। वी हैव, लेट्स से इट सेज रेंज in order, arrange in order of size, smallest first, right? So you just have to arrange, right? So what are the numbers beta? Let's say they give you a fraction, they give you a percentage, and they give you a decimal number, right? So I tell my students beta, obviously you can convert all of them into a fraction, you can convert them into decimals, but I think converting into percentage is easier, right? So we know 1/2 is what, 50%, and you can and beta एक और method क्या हो सकता है, any fraction you want to convert it into a percentage, you simply multiply by 100, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 45% is already in percentage, 0.6 already we have discussed, but a decimal number आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। सो ये कितना आ गया 50%, दिस इज बेटा 45%, और 0.6 इज हाउ मच बेटा, 2 डेसिमल्स टू द राइट मूव होगा, राइट, इट मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, सो इट वुड मूव 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट, ठीक। सो ये क्या आ जाएगा 60%, इसमें कोई डाउट, डेसिमल वुड लैंड हियर और इधर 0 आ जाएगा, ठीक। सो बेटा नाउ यू कैन अरेंज द स्मॉलेस्ट फर्स्ट, राइट, और आपने अरेंज करना है ओरिजिनल नंबर्स को, नॉट द वंस जो आपने कन्वर्ट किए। सो आप स्मॉलेस्ट फर्स्ट क्या लिखेंगे, 45%, एंड देन यूल राइट द फ्रैक्शन हाफ, एंड देन यूल राइट 0.6, बिकॉज आपने एक बेटा उसमें वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, यू कन्वर्टेड ऑल ऑफ देम इनटू फ्रैक्शंस, सो देन इट्स ईजियर फॉर यू टू judge between them कि which is the smallest and which is the greatest, right? बेटा जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आप चाहे इसको सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, परफेक्टली फाइन, आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो, परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट एक यूनिट में कन्वर्ट करो, राइट, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, देन इट बिकम्स सिंपल, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, बट रिमेंबर दैट जो हमें ओरिजिनल नंबर्स दिए हमने उसी को हमने एंड पे आंसर्स में वी हैव टू राइट इट डाउन। क्लैरिटी। एंड ऑब्वियसली बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो वो लैंग्वेज है दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे से कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस, ठीक हो गया, परसेंटेजेस। सो लैंग्वेज बेटा आपको क्या आती है, let's say 17 out of 20, so we have to convert this into percentages, right? Basically beta it's a fraction once again, ठीक है, तो 17 out of 20, so simply beta we have already discussed कि if you want to convert a fraction into percentage beta you simply multiply it with 100, ठीक हो गया। so ये आपके पास क्या आ गया बेटा, if you simply cancel out, तो बेटा ये इसको 10 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी 10 से डिवाइड करो, जीरोस कैंसिल, ठीक। और बेटा ये देखो 2 times 1 is 2 and 2 times 5 is 10, ठीक। एंड यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 5। लेट्स से इट्स अ पेपर 1 क्वेश्चन, सो बेटा आप साइड पे लिख के इतनी सी वर्किंग हम कर सकते हैं, राइट। सो 7 times 5 is 35, तो 5 and 3 is 8, so the answer is 85. So 85%, इसमें को डाउट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, तो लेट्स से बेटा आपको वो कहता है कि 19 out of 80, राइट। लेट्स से
आपके कोई मार्क्स आए आउट ऑफ 80, राइट? सो अगेन इट्स अ फ्रैक्शन, ठीक हो गया, 19 आउट ऑफ 80. सो बेटा एनी फ्रैक्शन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, वही कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई बाय 100. अब बेटा हम सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करो, जीरोस कैंसिल, ठीक, ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 5 इज 10, राइट बेटा? इसको सिंप्लीफाई कर. सो बेटा अगेन इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन पेपर 1, सो बेटा आप साइड पे लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लो. सो 9 टाइम 5 इज 45, तो 5 प्लस 4 इज 9, 95. क्लैरिटी? सो बेटा दिस इज 95 और 4. सो अगेन अगर आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो अगेन हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं बेटा. वेरी सिंपल ग्रेड 2-3 वर्क क्लास, बिल्कुल इनिशियल क्लास की ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो 4 टाइम 2 इज 8, सो बेटा 15, और 4 टाइम 3 इज 12, राइट? सो आपके पास क्या आंसर आ गया? बेसिकली यू लेफ्ट विथ 3, राइट? सो दिस इज व्हाट 23 होल, राइट बेटा? सो 3/4%, ठीक, या इन अदर वर्ड्स 23 पॉइंट, वी नो 3 और 4 इज 75, सो 23.75%. इसमें कोई डाउट? सो आई होप बेटा जो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लियर, राइट? अच्छा, अब जरा हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है? दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस दैट कम्स इन एग्जाम, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक, एंड अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक. अच्छा बेटा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन वर्ड प्रॉब्लम्स इज 100% मीन्स द ओरिजिनल प्राइस, ठीक हो गया? ओरिजिनल प्राइस, ठीक. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू गो टू मार्केट, ठीक, और यू वांट टू बाय समथिंग, और उसने आपको प्राइस, द प्राइस टैग विच इज लेट्स से 100 का प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक, और उसने 100 को कट करके he says 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, और न्यू प्राइस का जो लेबल बेटा है दैट इज 80 रुपीज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सो न्यू प्राइस का जो टैग लगा हुआ है दैट इज 80, ठीक हो गया? सो बेटा रिमेंबर दैट 100% इज योर ओरिजिनल प्राइस ऑलवेज, 20% डिस्काउंट दिया, अब न्यू प्राइस इज 80. सो लेट्स से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में हम इसको कैसे रीड करेंगे? दैट मीन्स आपको 20% डिस्काउंट मिला, सो यू हैव टू पे, नाउ यू आर पेइंग actually 80% of the original amount, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा? सो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट दिस परसेंटेज कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम्स, ठीक है? इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. अ कार कॉस्टिंग $2,400 is reduced by price by 10%, ठीक है? is reduced in price by 10%. find the new price, ठीक? सो बेटा अगेन ओरिजिनल प्राइस क्या थी उसकी? ओरिजिनल प्राइस दैट वाज बेटा $2,400, ठीक हो गया? और मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है ओरिजिनल प्राइस इज 100%. ओरिजिनल प्राइस को हम क्या लेते हैं? 100%, ठीक हो गया? सो इज रिड्यूस बाय 10%. फाइंड द न्यू प्राइस. इसका मतलब है अगर आपको 10% इस पे बेटा डिस्काउंट मिला है, सो यू हैव टू पे 90% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल. इसमें कोई डाउट? बेटा बस ये लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करना आ गया. इफ यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज देन इट्स 1+1, ठीक? यही मतलब है ना इसका कि आप 10% प्राइस रिड्यूस हुई, ठीक, ऑफ द ओरिजिनल. सो दैट मीन्स बेटा नाउ यू हैव टू पे 90% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. ऐसे ही है, ठीक है ना? क्लैरिटी? सो 90% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सो 90% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक? ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 2400. सिंपल वन लाइन आंसर. ये हमने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. सो ये बेटा आ गया 90% मीन्स आउट ऑफ 100, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. मल्टीप्लाई बाय 2400, ठीक? सो न्यूमरेटर को भी 100 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी 100 से डिवाइड. तो बेटा ये 2 zeros कैंसिल, ठीक, एंड डिनोमिनेटर में 1 है. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? 90 मल्टीप्लाई बाय 24.
राइट बेटा? सो ये अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से. पिकअप योर कैलकुलेटर्स और इसको जरा कैलकुलेट करो. सो $2,160 बेटा ये आपने प्राइस पे करनी है जो कि ओरिजिनली $2,400 थी. सो आफ्टर अ 10% डिस्काउंट इट इज $2,160. ठीक. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू द अदर वे राउंड. वो कहते हैं सर लेट्स फाइंड आउट द 10% डिस्काउंट. सो 10% ऑफ 2400. ठीक है. और वो ओरिजिनल प्राइस में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो अगेन बेटा एज फार एज द लॉजिक इज करेक्ट, द कॉन्सेप्ट इज करेक्ट, परफेक्टली फाइन. ठीक है. आप खुद देख लेना विच इज द ईजियर वे फॉर यू. पहले आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, फिर वो ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करोगे. सो परफेक्टली फाइन. सो व्हाट दे डू इज दे कैलकुलेट द 10% डिस्काउंट. ठीक है. यही था ना एग्जामिनर ने कि इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%. इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%. ठीक हो गया. सो 10% से रिड्यूस किया. चलो. सो 10% ऑफ 2400, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 इंटू 2400. सो ये बेटा 0 0 से कैंसिल. सो 24 इंटू 10 इज वॉट? 240. सो $240 इज द डिस्काउंट. इज द डिस्काउंट. ये माइनस कर लो. $2,400 में से यू माइनस 240. सो बेटा व्हाट इज द आंसर? अगेन बेटा वही आंसर है, $2,160. ठीक है. सो आप बेशक डिस्काउंट कैलकुलेट करके बेटा यू सब्ट्रैक्ट द डिस्काउंट, परफेक्टली फाइन, या आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो बिकॉज 10% डिस्काउंट का मतलब है यू हैव टू पे नाउ 90% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. क्लैरिटी? सो बेटा ये मेथड है टू टैकल दीज क्वेश्चंस. लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर क्वेश्चन. Okay beta, now again a very good question. Let's read this. After a price increase, अब बेटा in the last question there was a discount. ठीक है. अब in this question it says after a price increase of 10%, a television set cost $286. What was the price before the increase? ठीक है. What was the price before the increase? In other words, the examiner is asking you for the original price. For the original price before the increase, right beta? So beta please remember that we know that original is what? Original is 100%. already हमने discuss कर लिए. ठीक है. In the last question beta there was a discount of 10%. There was a discount of 10%. so हमने 90% प्राइस पे की थी. ठीक है. यही हमने पे की थी ना, 90% हमने पे की थी ऑफ द ओरिजिनल. ठीक हो गया. अब बेटा इन दिस क्वेश्चन रिमेंबर दैट इन दिस क्वेश्चन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10%. सो अब 100 के ऊपर जब 10% इंक्रीज होगा सो प्राइस विल बी 110% ऑफ द ओरिजिनल. इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी? बेटा अगर डिस्काउंट, ओरिजिनल इज ऑलवेज 100%, यू कीप 100% इन द मिडल. डिस्काउंट होगा बेटा तो ऑब्वियसली यू विल पे, लेट्स से अगर 20% डिस्काउंट है तो यू विल पे 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. ठीक. अगर प्राइस इंक्रीज होगी बेटा तो ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस तो इंक्लूडेड होगी ना, इट वुड बी ऑन द ओरिजिनल प्राइस. तो ओरिजिनल प्राइस इज 100%. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू पे 110% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है. सो द सेट कॉस्ट $286. ठीक हो गया. सो बेटा अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अगेन इट्स प्योर अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो 110% ऑफ ओरिजिनल, ऑब्वियसली ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है. इज दिस न्यू प्राइस विच इज $286, विच इज $286. बेटा इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी? ये बेटा ओरिजिनल होता है. रिमेंबर दैट दिस इज ओरिजिनल. ठीक है. सो 110 किस पर? ऑफ द ओरिजिनल इज $286. इंक्रीज्ड प्राइस आपको गिवन है. सो दिस इज ऑब्वियसली 110% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. चलो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. लेट्स बेटा सॉल्व दिस. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 110 परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ x इज $286. राइट बेटा? ठीक हो गया. चलो सो ये आपके पास क्या हो गया? 110x. 100 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है बिकॉज दिस इज कॉमन डिनोमिनेटर. इक्वेशन के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया. इज इक्वल टू 286 मल्टीप्लाई बाय 100. इसमें कोई डाउट?
So which is 110x is equal to 286. ठीक है बेटा. So just multiply by 100, दो zeros आ जाएंगे, 28600. और बेटा इसको डिवाइड कर दो by 110 और टेल मी द आंसर. x की वैल्यू बेटा क्या आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जरा कैलकुलेट करके. सो ये बेटा आंसर आ गया $260. ठीक है, $260. क्लैरिटी? अच्छा, आई होप बेटा इट वॉज वेरी सिंपल. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बेटा. अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड कन्वर्टिंग दैट लैंग्वेज इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक है बेटा. सो आई होप अगर इंक्रीज आ जाए तो बेटा ऑब्वियसली 100 पे आप इंक्रीज कर दो. ठीक. सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. अच्छा बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. सो इट सेज इन अ सेल a jacket costing $40 is reduced by 20%. So what is the sale price? ठीक है बेटा. So again we know this is the original price $40. ठीक हो गया. So बेटा we know कि 100% आपकी ये original price होती है. ठीक हो गया. So it's given to us और there is a 20% discount. 20% discount के बाद बेटा क्या हो जाएगा? So you have to pay 80% of the original price. यही मतलब है ना 20% डिस्काउंट का. That means you have to pay 80% of the original price. Right बेटा? So इस तरह से आपने इसको रीड करना है. क्लैरिटी? ठीक हो गया. So 80% of the original which was $40. ठीक है. So ये बेटा आएगी, this would be your sale price. ठीक है. इसको हम क्या, दिस इज योर सेल प्राइस. ऐसे ही है ना, बिकॉज देयर इज अ डिस्काउंट गिवन टू यू. चलो, सो 80% मीन्स 80% मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 40. ये बेटा जरा सिंप्लीफाई करो. सो 0 अगर हम 10 से डिवाइड करें और ये 0 से कैंसिल. सो 8 टाइम 4 इज व्हाट? $32. राइट. सो $32 बेटा is the price after a 20% discount. Clarity? ठीक है. And the other way around, some of the students they would just calculate beta 20% of 40. So वो discount calculate करेंगे पहले, which is again perfectly fine, of 40. So वो discount को फिर original price से minus कर देंगे and they would get the sale price. So ये बेटा zeros आप cancel out कर दो. So $8 is the discount. ठीक है. 20% of 40 is $8. So what they do is वो original price में से discounted price minus करेंगे. Again they'll get the same $32, which is the price in the sale, which is the sale price. Clarity? So perfectly fine once again. Okay beta, let's take a look at this question. A radio is bought for $16 and sold for $20. What is the percentage profit? Again, a very common question that comes in exam. ठीक है बेटा. What is the percentage profit? So बेटा इसको normally इसका जो formula होता है that is change over original price. ठीक है, into 100. Simple as that. ठीक है. So we have बेटा आपकी buying price क्या थी या cost price क्या थी? That was $16. What was the selling price? That was $20. So change क्या आ गया आपके पास? ठीक है, आपका प्रॉफिट क्या आ गया या चेंज क्या आ गया? Which is $4. इसमें कोई डाउट? तो सिंपल फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज प्लग इन कर दो. चेंज ओवर ओरिजिनल विच इज योर ओरिजिनल प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस. ठीक है. ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है बेटा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जरा मुझे आंसर बताओ. सो दिस इज बेटा 25%. ठीक हो गया. ये आपका आ गया परसेंटेज प्रॉफिट. दैट मीन्स उसने 25% प्रॉफिट के ऊपर उसने उसको सेल किया. क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया. बिकॉज ओरिजिनल प्राइस से तो ज्यादा सेल किया, सो दैट मीन्स प्रॉफिट तो है ही है. सो परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लिया. आपने सिंपली वो जो फ्रैक्शन थी आपने बेटा उसको 100 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट दैट वैल्यू इन द परसेंटेज. ठीक है, वो फ्रैक्शन आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर ली. सो 25% उसको प्रॉफिट हुआ. क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा, ये जरा क्वेश्चन देते हैं. वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम.
अच्छा बेटा जरा रीड करते हैं. अ कार इज सोल्ड फॉर $2,280 एट अ लॉस ऑफ 5%. ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 5%. दैट मीन्स बेटा, एंड ऑब्वियसली ऑन द कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, ऑन द कॉस्ट प्राइस. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. ठीक, चलो फाइंड द कॉस्ट प्राइस. सो बेटा व्हाट डू मीन बाय लॉस ऑफ 5%? सो बेटा ऑलरेडी हमने ये इक्वेशन बहुत दफा मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया हुआ है. ओरिजिनल प्राइस इज ऑलवेज 100%. ठीक हो गया. प्रॉफिट आएगा तो विल गो अपवर्ड्स, लॉस होगा तो विल गो डाउनवर्ड्स. सो 5% का लॉस है, राइट? एक सेकेंड, विल राइट इट हियर. सो लॉस ऑफ 5% मीन्स अब आपने बेटा 95% ऑफ ओरिजिनल प्राइस आपने पे करनी है. इसमें कोई डाउट? बिकॉज 5% लॉस हुआ है ना, आपको 5% लॉस हुआ है. सो ये जो वैल्यू शो कर रही है ये आफ्टर अ लॉस ऑफ 5% हुआ है. सो दिस मीन्स 95% ऑफ सम ओरिजिनल वैल्यू इज दिस वैल्यू. ठीक है, 2280. इसमें कोई डाउट बेटा? ठीक है, बिकॉज आफ्टर अ 5% लॉस आपने बेटा कार को इस प्राइस पे सेल किया. क्लैरिटी? ठीक हो गया ना? क्लैरिटी. सो दैट मीन्स आपने 95% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू पे आपने कार को सेल किया, एंड दिस इज द सेल प्राइस. ठीक, ये लैंग्वेज बेटा क्लियर हो गई? ठीक है. सो दिस लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. एक लाइन का आंसर है इफ यू गेट दिस पॉइंट. ठीक है, ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस कर लिया है. सो बेटा यू शुड बी नाउ एबल टू ट्रांसलेट दीज एक्सप्रेशंस इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म. क्लैरिटी? चलो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ सम ओरिजिनल वैल्यू x इज 2280. चलो बेटा 100 इधर कॉमन डिनोमिनेटर इक्वेशन के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 95 इंटू एक्स इज 95x. सो 2280 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज ऑब्वियसली, सो ये बेटा हो जाएगा 95x इंटू 2280 और 00 साथ आ जाएगा बेटा. और x is what? You simply divide 228,000 divided by 95. जरा मुझे बताओ बेटा इसका आंसर क्या? सो बेटा दिस इज $2,400. ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो इसने सेलिंग प्राइस है दिस इज लेस दैन द ओरिजिनल प्राइस. दिस इज लेस दैन द ओरिजिनल प्राइस बिकॉज ये 5% डिस्काउंटेड प्राइस है. ठीक है, 2280 इज द 5% discounted price. Yeah, in other words, this is 95% of this original price. ठीक है, 2280 is what? 95% of the original price. ये बेटा original price है. ठीक है, original price. ठीक है, ये जो x है इसमें कोई डाउट बेटा? So I hope beta these word problems now they are 1+1 for you. We have done quite a lot of practice. बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी, डू टेल मी इन द कमेंट्स.